we are joined by Olympic medalist Sakshi Malik as well. What they have been saying that they will continue with their protest today as well. साक्षी, ये कल शाम की बात है. अगर आपने बजरंग और विनेश फोगाट से WFI और उनके अध्यक्ष के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों को वो बेबुनियाद बता रहे हैं. बिल्कुल गलत बात है. जो भी हमने बातें बताई हैं, जो भी बातें हुई हैं, वो सारे एलिगेशन बिल्कुल सही हैं और टाइम आने पे प्रूफ भी कर देंगे और सबूत भी आ जाएगा. और पीएम सर से रिक्वेस्ट है कि हमें मिलने का टाइम दें और उनके आगे हम अपना खुल के बात भी बताएंगे, कौन है, कैसे हुआ, कब है, और सारी बातें हम अपने खुल के रखेंगे. पर वही साक्षी, लेकिन श्री बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि आप और बजरंग पुनिया कुछ हफ्ते पहले उनसे मिले थे और उनका ये भी दावा है कि तब किसी ने भी ये आरोप नहीं लगाए थे. तो वो पूछ रहे हैं कि ये बातें अभी क्यों सामने लाई जा रही हैं. देखो, मैं कॉमनवेल्थ गेम की रिसेंट की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ. पहला ऐसा नेशनल है जो मैंने छोड़ा था और वो भी एक इंजरी के लिए मैंने छोड़ दिया. लेकिन उसके बाद भी मैं मिलने गई कि मेरा कैंप में नाम डाल दो. इतने मेडल्स देने के बाद भी आज मेरा सीनियर कैंप में नाम नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, बार बार जाके उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि प्लीज नाम डाल दो, जबकि ऐसी ऐसी लड़कियों के नाम है. बहुत जूनियर्स हैं, अभी शुरुआत की उन्होंने. क्या हम डिजर्व नहीं करते कि हमने? Well, you have Olympic medalist, you have the Commonwealth Games medalist, and who have been representing India on several global platforms as well, making such serious allegations against the WFI president, because it has now also sparked off a political war with the opposition parties who are gunning for the BJP and the centre. With the TMC has now sought strict action against the incumbent BJP MP, while the Samajwadi Party has sought direct intervention of the Prime Minister in the matter. और ज्यादातर मांग यही रही है, जितने भी हम खिलाड़ी देख रहे हैं जो सड़कों पे उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे हालात अभी इस तरह से बने हुए हैं कि अभी हमें सिर्फ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से ही बातचीत करनी है. Brijbhushan Saran Singh is not only the chief of the Indian Wrestling Federation, he is also a big leader in Uttar Pradesh for the Bharatiya Janata Party and a member of parliament. The allegations that the international wrestlers have put down is a matter of great concern, and it is horrible, incredibly horrible. The Bharatiya Janata Party and Prime Minister should intervene in this and take the strictest of action right now. Prime Minister Narendra Modi speaks about Khelo India Khelo. He talks about Beti Padhao, Beti Bachao. But what do we see? There are serious charges of sexual assault against the President of the Wrestling Federation of India, Brijbhushan Saran Singh. All India Trinamool Congress condemns this kind of attitude of the Federation of India and is absolutely shocked. तो वहीं जहां तक ऑपोजिशन की बात करें तो वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन डिमांड कर रहे हैं बीजेपी के एमपी के खिलाफ. तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी, क्या समय के चलते एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि देखिए, जहां तक खिलाड़ियों की बात है, उन्होंने अपनी डिमांड आगे रखी है. वहीं पर एनसीडब्ल्यू ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और सवाल इस मामले को लेकर जवाब मांगा है जो अथॉरिटीज है उनसे. तो अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी. Number one, the athletes also have very categorically came up and said that this is not against the government, this is not against BJP, it is about the federation and the person sitting there. That is first point. The second point is, we are not looking at it with political vision. What we are saying is that these allegations, all the facts should be brought in, a thorough inquiry should happen, and without the investigation, this matter should not be let to rest. There should be a thorough investigation into it. ऐश्वर्या, आपके पास दोबारा आते हुए अंदर की कार्रवाई के बारे में बताइए. बताया जा रहा है कि काफी हलचल मच गई थी. अगर हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के भी बारे में बात करें तो सीधे तौर पे जवाब मांगा है अगले 72 घंटों में, लेकिन अंदर कोई कार्रवाई की मांग हो रही है क्या? देखिए, लगातार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उन खिलाड़ियों के टच में भी है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बृजभूषण शरण के टच में भी है. और ये भी कहा गया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बात
72 घंटों के अंदर जवाब मांगा है बृजभूषण शरण से, WFI प्रेसिडेंट से, जो भी एलिगेशन ये रेसलर्स लगा रहे हैं। क्योंकि जो रेसलर्स सड़कों पर बैठे हैं और आज भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, उनका साफ तौर पर कल भी कहना था कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से नहीं मिलते। उन्होंने खेल मंत्री से मिलने के लिए भी साफ तौर पर मना कर दिया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात की जाए तो इंटरनल इंक्वायरी बिठाने की जरूर बातचीत चल रही है, ये भी हमें सूत्र बता रहे हैं। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि कल रात को किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता का बृजभूषण शरण के पास फोन भी पहुंचा था और उनसे जवाब भी मांगा गया है। जो हाई अथॉरिटीज हैं बीजेपी के अंदर, उन्होंने इस पूरे मामले में तो उनको भी जवाब देना है, क्योंकि बीजेपी के एमपी भी हैं और लगभग 3 बार के WFI के प्रेसिडेंट है। लेकिन जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सख्त हैं और इसीलिए आज दोबारा जंतर मंतर पर जब ये रेसलर्स बैठेंगे, इनके साथ आज भारी भीड़ में और भी तमाम रेसलर्स देश भर से जुड़ने वाले, ऐसा भी माना जा रहा है। कल 30 रेसलर्स थे, आज और भी ज्यादा रेसलर्स इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी तक जो उनकी डिमांड्स है वो उस पर डटे हुए हैं कि उनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करनी है, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो सबूत पेश करेंगे, पर केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने। तो देखना यह होगा कि जब आज प्रोटेस्ट होगा तो क्या होता है। शुक्रिया ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।